Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So, here we will start a new chapter of your science book. Chapter is chapter number 12 Beyond Earth. Yes, this is a chapter all about. So, what is the objective? What are the things we will discuss here in this class? Let's have a look in the learning objectives. So, learning objectives are learn that stars are burning balls of gases that make their own lights and heats. Stars have their own light and heat, and its star are a burning ball. ठीक है, stars क्या एक burning ball of gases है. Okay, that makes their own light and heat, और stars अपनी light and heat खुद बनाते हैं. फिर हम क्या पढ़ेंगे? Identify various constellations like Yusra Major और Oregon and understand their culture importance also. उसके बाद हम देखेंगे known the International Astronomical Unit IAU set official boundaries for 88 constellations. Learn how to observe star, planets and the moon during the night sky. और देखेंगे कैसे हम star and all the planets को हम observe करते हैं रात के टाइम पे. Understand the basic structure of the solar system. Solar system का basic structure भी देखेंगे, including the sun, planets and other celestial bodies. ये सब के बारे में भी हम देखेंगे. Known the sun roles in the solar system and its importance to earth and various culture. और क्या देखेंगे? सन का क्या रोल है सोलर सिस्टम में, सन क्या है, सन इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है, ये भी देखेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन द इनर एंड आउटर प्लैनेट्स. इनर और आउटर प्लैनेट्स भी होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में. वी ऑल नो वी इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स. 4 आर द इनर प्लैनेट्स एंड द अदर 1 आर द आउटर प्लैनेट्स, है ना. Differentiate between the inner and outer planet and recognize their feature and visibilities. और फिर इनके features भी होते हैं अलग अलग and उनकी visibility भी. Explore the moon and other celestial bodies like asteroids and comets and their roles in the solar system. ये कुछ चीजें बेटा हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. Okay? So ये एक warm up activity है. So you can try it yourself. Okay? It is an activity, very interesting activity. तो चलिए फिर अब हम बिना देरी करे अपनी क्लास को और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं इस क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. स्टार्स एंड द कॉन्स्टेलेशन के बारे में हम देखने वाले हैं. द नाइट स्काई इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ ट्विंकलिंग लाइट्स. नाइट स्काई में क्या होता है? ट्विंकल लाइट्स, एकदम स्टार्स लाइट्स हम ट्विंकल होते हुए दिख रहे होते हैं हमें. ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्टार, है ना. स्टार आर अ जाइंट. देखिए स्टार है क्या, इंपॉर्टेंट है. स्टार आर giant ball of burning gases. stars एक burning gases है, ठीक है. mainly hydrogen and helium. ये burning gases किससे है? helium and hydrogen होता है. अगर कोई आपसे पूछे stars are giant means बड़ा सा गोला of gases का, कौन सी? hydrogen and helium that produce their own light and heat through nuclear reactions. nuclear reaction की वजह से stars produce their own heat and light. The sun is the closest star to earth. earth के comparison में sun सबसे closest star है. Okay? is just one of billions scattered across the universe. ये एक है सिर्फ sun, है ना. sun क्या है? एक we can say giant ball of burning gases का है, और इसमें क्या है? नाइट्रोजन एंड हीलियम. सन भी एज अ एक स्टार है क्योंकि दे ऑल्सो हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. सन की अपनी हीट और लाइट होती है, और वो एक सन एक है जो सारे प्लैनेट सोचो सन के चारों तरफ घूमते हैं. देख रहे हो ना सन कितना पावरफुल है. Constellations are pattern formed by group of stars in night. Constellation, what is constellations? आपने ऐसे रात में देखे होंगे कुछ शेप्स दिखती है, स्टार्स का ग्रुप ऑफ स्टार्स का है ये, उसको बेटे बोलते हैं हम constellations. So constellation are the pattern formed by the group of star. ग्रुप ऑफ स्टार को नहीं कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टार एक पैटर्न जो फॉर्म करता है बेटा, उसको कहेंगे constellation. Ancient civilization use these imagination to connect their star into shapes resembling animals. Means ancient time में उन shapes को उन animals से compare कर दिया जाता था. ऐसा होता है ना, हम भी कभी कभी देखते हैं स्टार, अरे ये मैं हाथी जैसा लग रहा है ना. ये ग्रुप ऑफ स्टार जब ऐसे मिल जाते, अरे ये ना हमें इस वाली शेप का लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना. माइथोलॉजिकली
क्रिएचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सो एंशियंट लोग इस तरीके से रिलेट करते थे, वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक शेप बनाते थे। सम फेमस कॉन्स्टलेशन विजिबल इन नाइट स्काई आर यूसरा मेजर और द ग्रेट बियर। वो बियर की शेप बनाता है ये जो ग्रुप ऑफ स्टार, उसको बेटा बोलते हैं हम यूसरा मेजर। ओके, ओरिगॉन, ओरिगॉन द हंटर एंड स्कॉर्पियन द स्कॉर्पियन। ये कुछ कॉन्स्टलेशन रात के टाइम पे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये शेप, देख रहे हो आप, ये देखो, ये है सिरिकस, ये देखो ओरिगॉन, देख रहे हो ये शेप, एंड दैट इज टॉरस। ये कुछ शेप्स, ये कुछ कॉन्स्टलेशन है, ये देख रहे हो अलग अलग शेप, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार बना रहे हैं, कुछ ट्राइंगल टाइप, कुछ स्टार्स टाइप, है ना, इस तरीके की शेप्स। Different culture has various way to defining constellation boundaries, so that the International Astronomical Union IAU established a universal accepted set of boundaries in the early 20th century. The IAU officially recognized 88 constellation. देखिए IAU का फुल फॉर्म पता लग गया ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसने रिकॉग्नाइज किया 88 कॉन्स्टिलेशंस। जो अभी हमने 3 कॉन्स्टिलेशन पढ़े, ऐसे 88 कॉन्स्टिलेशन है, मींस 88 ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स हम बोल सकते हैं स्टार्स के, जो एक पैटर्न बनाते हैं, effectively dividing the entire sky into 88 distinct regions which are now identified as constellation. Clear? Some constellation are shown in the picture. कुछ constellation इस picture में दिख रहे हैं. Imaginary lines are drawn between the star to make the identification clear. ये ऐसे lines नहीं दिखती, ये तो आपको line बना दी है ताकि आप इनकी shape अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। एक imaginary line draw कर दी है stars, जहां जहां पे group of stars थे। For example, the constellation Orion is often depicted as a hunter. Orion देखो एक hunter की shape जैसा लग रहा है। The 3 stars in the middle of Orion represent the hunter's belt. Many people envision the hunter Orion accomplished by the dog. The constellation can is major in a battle against the bull. Means ये वाला आप देख पाओगे, इसकी अलग shapes है और सब constellations की अलग अलग shapes आपको देखने के लिए मिल रही है ना। नेक्स्ट, नाइट स्काई वॉचिंग। नाइट स्काई में अगर हमें वॉचिंग करना है, क्या है ये, नाइट स्काई में क्या वॉच कर सकते हैं हम। नाइट स्काई वॉचिंग और स्टार ग्रेजिंग इज एन एक्टिविटी वेयर यू ऑब्जर्व सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, मींस ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन कर रहे हैं, मींस द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द मून। दिस एक्टिविटी रिक्वायर अ क्लियर नाइट स्काई। आपको क्लियर नाइट स्काई चाहिए होगी, अवे फ्रॉम द सिटी लाइट्स, एज आर्टिफिशियल लाइट कैन ड्रॉन आउट द फिल्टर्स स्टार एंड सेलेस्टियल बॉडीज। मींस आपको ये करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक प्रॉपर व्यू ऑफ स्काई का मिलना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई कैन बी अ मैजिकल एक्सपीरियंस। रात में आसमान को देखना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एज योर आईज एडजस्ट टू द डार्कनेस, मोर स्टार एंड पैटर्न्स बिकम विजिबल। जैसे आपको क्या होता है, रात अंधेरी हो जाती है ना, तो आप अच्छे से वो देख पाओगे, वो पैटर्न्स जो वो कॉन्स्टलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विद अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से देखते हैं रात के टाइम, जब बिल्कुल वहां पे कोई इसलिए गांव में, मतलब सिटीज में नहीं पॉसिबल होता क्योंकि वहां एक्स्ट्रा लाइट्स बहुत होती है, आपको अंधेरा करके ना, और जो रात में टेलीस्कोप से बहुत अच्छा दिखता है। With the telescope, you can see distinct planets, craters on the moons even. टेलीस्कोप से सोचो आप, मून्स पे जो छेद है, क्रेटर्स है, वो भी देख सकते हो और प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। एंड इवन द रिंग्स ऑफ सैटर्न, सैटर्न का रिंग भी देख सकते हैं। सैटर्न हमारा प्लैनेट है, आउटर मोस्ट प्लैनेट, उसका रिंग भी देख सकते हैं, सोचिए। Binoculars are also been helpful for the closer look of a star cluster and the surface of the moon. आप देख पाएंगे ये सब चीज का रात के टाइम पे। दिन के टाइम पे इट इज नॉट पॉसिबल टू सी सैटर्न रिंग और स्टार्स और प्लैनेट्स, नहीं पॉसिबल है। नॉट ऑल स्टार एंड कॉन्स्टलेशंस कैन बी सीन फ्रॉम एवरी लोकेशन ऑन द अर्थ और एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। ऐसा नहीं है कि पूरे साल कभी भी देख सकते, नहीं, क्लियर स्काई होनी चाहिए। उसकी भी कुछ हम देखेंगे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, तब हम ये चीजें देख पाते हैं। ये नहीं आज आपका मन किया तो आप देख लोगे, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके,
Not all the star and constellation can be seen from every location on the earth or at all times of the year. मीन्स जो कॉन्स्टलेशंस आपने देखने हैं वो हर जगह से नहीं दिखते और हमेशा नहीं देख सकते, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द पोल स्टार कांट बी ऑब्जर्व फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर से आप पोल स्टार नहीं देख पाएंगे, ओके। To recognize a star or constellation, it's important to know what the specific constellation look like and where to search for it in the night sky. आपको ये पहले रिसर्च करना पड़ेगा, आप जो कॉन्स्टलेशन देखना चाह रहे हैं वो कौन से जगह से आपको प्रॉपरली दिख पाएगा। Okay, you can use picture to become familiar with the constellation pattern to determine when and where a star or a constellation will be visible from your area. You can use your sky mapping app available on the mobile device or other online tools. हम online tools का भी यूज कर सकते हैं, वो आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ से देखें आपको प्रॉपरली दिख पाएगा। और अपनी एक नोटबुक में भी वो इमेज ड्रॉ करके रखिए जो आपको देखनी है, ताकि स्काई में आपको उस जैसी इमेज दिखाई दे तो आप फट से पता कर ले कि आपको ये दिख गया, मतलब ये कॉन्स्टलेशन आपने देख लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स भी लिखिए। सेलेस्टियल बॉडी रिलेटेड टू द स्काई और आउटर सरफेस, सेलेस्टियल वो होती है जो स्काई के आउटर सरफेस के स्पेस की जो चीजें हो गई है ना। और कॉन्स्टलेशन तो पता ही है, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ recognizable pattern and give a specific name, means ग्रुप ऑफ स्टार, वो स्टार जो एक कोई पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। आप देखिए हम कैसे देख सकते हैं नाइट स्काई को, लेट्स सी। प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग, नाइट स्काई वॉचिंग की क्या प्रिपरेशन होगी, लेट्स सी। चूज द राइट स्पॉट, आपको राइट स्पॉट चूज करना पड़ेगा सबसे पहले। फाइंड द लोकेशन अवे फ्रॉम द सिटी लाइट, सिटी लाइट से अवे होना चाहिए। वेयर द स्काई इज डार्क, जहां पे स्काई डार्क हो वहां पे कोई एक्स्ट्रा लाइट्स ना हो। हायर एल्टीट्यूड्स लाइक हिल्स और ओपन फील्ड आर ग्रेट फॉर द क्लियर स्काई, मीन्स ओपन फील्ड या हिली एरियाज में जाके आपको अच्छे से देख पाएंगे एज कंपेयर टू सिटीज में अगर आप देखेंगे तो। सेकेंड है चेक द वेदर, वेदर इज ऑल्सो कि सनी मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वेदर। द क्लियर स्काई एसेंशियल फॉर स्टार गेजिंग, क्लाउडी नाइट्स और फुल मून कैन ऑब्स्ट्रैक्ट योर व्यू, मीन जिस दिन फुल मून है, पूर्णमासी है, या जिस दिन क्लाउडी स्काई है तो आपको वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप अच्छे से देख पाए। सो वेदर इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वेदर शुड बी अकॉर्डिंग टू your needs. Next is know the timing also. The best time for the night sky watching is usually a few hours after sunset, means sunset के थोड़ी देर बाद जो टाइम हो, जैसे आज के टाइम पे अगर सनसेट 7 बजे हो रहा है शाम के, तो 8 बजे के करीब ऐसा है ना, few 8-9 बजे के करीब हम कह सकते हैं। और usually a few hours after sunset when the sky is full of dark. Different celestial events like meteor shower or planetary elements occur at specific time, so plan accordingly. So plan accordingly कि आपका टाइम इस तरीके से होना चाहिए। Bring necessary gear also. If you have a telescope or binoculars, bring them along. A comfortable chair or a blanket will help you to relax watching the sky, means आराम से आपने बैठ के पूरा वॉच करना है, okay? Don't forget a red flashlight, it preserves your night vision while allowing you to read star chart, मीन्स रेड लाइट भी रखनी है ताकि आप जो मैप है उसमें आप देख पाओ उसको, है ना। ड्रेस प्रॉपरली, नाइट्स कैन बी कोल्डर इवन इन समर, सो ब्रिंग अ वार्म क्लोथ्स विद यू, सो आप ठंड ना लगे आपको। स्टे सेफ ऑल्सो, ऑलवेज स्टारगेज विद अ फ्रेंड और अ एडल्ट, मीन्स अपने साथ कोई लेके बैठिए, अकेले नहीं रात में आप बैठ जाए। Ensure you have a torch, water and a snack if you are planning to be out for a long time. तो ये चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले कि आप राइट स्पॉट, वेदर अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग, ताकि आप जो देखना चाहते हो, जो कॉन्स्टलेशन, जो प्लैनेट्स या जो भी, आप अच्छे से देख पाए। क्लियर? ये चैप्टर क्लियर? हमने क्या क्या चीजें देखी, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, कौन से डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, फिर अगर हमने देखना है तो हम किस टाइम पे और कैसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा का पूरा। होप सो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए हैं। सो आज के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए। आई होप सो कि आप लोग ये ट्राई जरूर करेंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है आपको देखने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।